फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है व्लादिमीर पुतिन मोटिव्स और इन्वेडिंग यूक्रेन। तो चलो देखते हैं कि क्या है उस मोटिव्स। ठीक है ना? तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। What is the primary motive of Mr. Putin for his invasion? See, the first thing is this illegal regime change, this completely undemocratic regime change that was effected by the West in 2014 when the elected president, the elected government was ousted, right? Yeah. Viktor Yanukovych's government and Petro Poroshenko was installed in his place. That is completely illegal and undemocratic. The West talks about a rules-based or global order and democracy and liberalism. Where did all that go when they did this regime change? So, and then after this regime change happened, the new regime in Ukraine, which is a pro-West, pro-US regime, was making moves to become a part of NATO. NATO is what is NATO? NATO during the Cold War was the American anti-Russian alliance. So NATO is the North Atlantic Treaty Organization. The US is part of it, I believe. I'm not sure if Canada is part of it. Look it up. Okay, I'm not going to give you. I don't remember everything, but France is part of it. Germany is part of it. The UK is part of it, and various other countries in Western Europe are part of NATO. It was an anti-USSR alliance. After the dissolution of the USSR, NATO for some time did not have any real meaning. It is essentially the way of the US to control Europe, right? Because you have US troops permanently stationed in Germany, which essentially tells you that Germany is under US occupation. It's under American occupation. There's no other nice way of putting it. Imagine if you had American troops permanently stationed in India. What would that mean? It means India is under US occupation, nothing else. So Germany is currently under US occupation, and so on and so forth, right? Germany. So, and there was this deal that was agreed upon after 1991, I believe, that NATO will not expand further east. That countries, nations that used to be under the part of the Soviet bloc would not be incorporated into NATO. That was the agreement that was made between Russia and NATO. And now they are trying to break the agreement because they were trying to bring Ukraine into NATO. They changed the regime illegally, undemocratically, and then the new regime was making moves to join NATO. That is a red line Mr. Putin will never allow anyone to cross. That is simply unacceptable because that is the encirclement of Russia. If you look at the map, I don't have a map of all the US military bases, but it essentially encircles Russia. Imagine if you had Russian military bases in Canada, in Mexico, in Cuba, all across the US. Would the US not see this as a declaration of war? So यहाँ से आप लोग मुझे बाबा कमेंट में क्यों and a grave threat to their national security? Obviously, they would see it that way. But if the Russians see it as a threat to national security, they should tolerate it. That's the kind of attitude the US has. No. So obviously, Mr. Putin is not going to accept that. And when the Ukrainians started making moves for joining NATO, that was the red line that Mr. Putin could not allow them to cross because then everything is up for grabs. So that is the primary reason. That's the primary reason why Mr. Putin has decided to invade Ukraine. So that's what it is. And also because of, the media will not highlight this, but the Russians have been claiming that the Ukrainians are perpetrating all kinds of atrocities against Russian-speaking people. There have been massacres and murders and disappearances and whatnot. Okay, the Western media will not corroborate this, so we don't know what to believe, what not to believe. We in India believe the English-speaking media, especially if they speak with a posh British accent or an American accent, and they will never report all these things. But I believe it may be true. Why should we only believe one side of the story? The Russians have been making the claim, and actually, it was briefly reported. Some of these things were briefly reported before they were all swept under the carpet. They were even reported by the Western media. So these are the reasons why Mr. Putin has gone ahead with the invasion.
तो फ्रेंड्स, जहां तक इनकी बात से समझ में आया, इनका कहना है कि जब नेटो ने कोई डील साइन की हुई है रशिया के साथ कि हम जो है इन कंट्रीज जो जो हैं इनके जो है एक्सपेंशन नहीं करेंगे, वहां पे नेटो को नहीं लेके आएंगे। इनका कहना है। अच्छा, अब हस्बैंड तो थे नहीं। मैंने एक वीडियो की थी ग्रेविटास की, तो वहां पे मुझे समझ में आया था, और उसमें उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि उन्होंने ये बोला था कि नेटो जो है एक्सपैंड कर रहा है इस साइड, और पुतिन जो है वो नहीं चाहते कि वो करे इस तरह से, इस रशिया की तरफ जो है एक्सपैंड करे, और वो चाहते कि ऐसी कोई एक ट्रीटी होनी चाहिए या साइन होनी चाहिए जिसमें ये कहें कि नेटो जो है वो यहाँ पे रशिया के आसपास नहीं आएगा। मतलब उन्होंने, मुझे जहां तक मैंने जब उनका वीडियो देखा तो मुझे तो ये समझ में आया, और इनके वीडियो में वो कह रहे हैं कि ट्रीटी साइन हुई भी है, और इसका मतलब ये है कि इनके हिसाब से वो ट्रीटी को ब्रेक करा जा रहा है। तो अब मेरे तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, सब अपनी साइड ऑफ स्टोरीज बताई जा रहे हैं। मुझे तो अब लगता है कि भैया मीडिया को सुनो मत, खुद ही जाके पहले सर्च करो, स्टडी करो, नेटो की डील क्या है, क्या पहले था क्या नहीं था। नहीं, देखिए पॉइंट ये है कि जो जिस साइड का बंदा है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। अगर आप देखेंगे, ऑब्वियस है इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप अच्छे थे तो इंडिया सपोर्ट करेगा, इंडिया के लोग, इंडिया के हर कोई जो है उस हिसाब से सपोर्ट करेगा रशिया को। अगर आप यहाँ पे आते हैं यूरोप में या अमेरिका में आते हैं, तो यहाँ पे जो नेटिवली बॉर्न है यूरोपियंस, नेटिवली बॉर्न है अमेरिकन, वो साइड लेंगे अपनी कि तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, राइट। तो हर बंदा अपनी साइड ले रहा है। अब रियलिटी ये है कि आप यूक्रेन से पूछिए, यूक्रेन के बंदे से पूछिए कि यूक्रेन क्या चाहता है, और आपको ये शॉक लगा कि यूक्रेन वाले चाहते हैं कि रशिया को अटैक नहीं करना चाहिए। यूक्रेन वाले कहते हैं हम सॉवरेन कंट्री है, हमारी कंट्री रशिया का कोई मतलब नहीं आने में। अब ये यूक्रेन की है, आप कहीं पर भी देख लीजिए, आप कोई भी फुटेज देख लीजिए, जितनी भी फुटेज अवेलेबल है जहां पे यूक्रेन के बंदे खुद कह रहे हैं कि तुमने, रशिया ने हमारी कंट्री पर अटैक किया, जो गलत है, तुम्हारी कंट्री पे मत अटैक करो, अपने कंट्री में रहो और हम नहीं जाएंगे, ये वो। तो यूक्रेन का बंदा तो क्लियर हो रहा है कि वो खुश नहीं हो रहे यूक्रेन के लोग। आप जनता से पूछिए, क्या यूक्रेन की जनता बहुत खुश हो रही है? अरे बहुत अच्छा हो गया, बहुत हो गया, बहुत अच्छा कर दिया तुमने, अटैक कर दिया? नहीं ना, वो तो बच्चा अपने घर में राइफल लेके बैठ गया, उन्होंने ड्रिल्स की, सारे लड़के लड़कियां सभी लोग घरों में राइफल लेके बैठे कि आओगे तो तुम्हें उखाड़ देंगे, हमारी कंट्री में तुम कैसे आ रहे हो, हम नहीं जाएंगे। जितने भी ओल्डर लोग हैं, बच्चे हैं जो फाइट नहीं कर सकते, उनको ट्रेन्स लेके जा रही हैं सेफर जगहों पे। वहां के लोग जो है, जो भी फाइट कर सकता है वो वहीं पर ही फाइट कर रहा है। अगर उनको लगता कि हाँ ये सब बढ़िया, तो वो फाइट क्यों करते, वो तो खुश होते बड़े। तो ऐसा नहीं हो रहा। तो हर बंदा अपने एंगल से स्टोरी बताएगा, जो अलाइंड है जहां पे जो इंसान पैदा हुआ, जहां पे उस हिस्ट्री में जो उसने देखा, वो उस साइड को लेगा। यहाँ की साइड जो है ऑब्वियसली दिखाएगी कि भाई डेमोक्रेसी है। अगर हमने जो भी अपनी तिगड़म लगा के वहां पे गवर्नमेंट चाहे चेंज की हो, हमने कोई वायलेंस क्रिएट नहीं किया, हमने बोला तुम्हें नेटो मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी, बाद में मिलेगी, तो ये हमने किया। हमने क्या, मतलब जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं या अमेरिकन कंट्री, उन्होंने ये नहीं कहा अमेरिका ने कि हमने जो है यूक्रेन पे वॉर कर दी, फिर यूक्रेन में वॉर करके उनके लीडर्स को चेंज कर दिया और उनको फोर्स किया। नहीं, उन्होंने बोला कि हमने जो भी चाल चली पॉलिटिकली पीसफुल तरीके से, हमने वहां पे अपनी पावर की। अगर आप चेस देख रहे हैं तो चेस के बोर्ड में हमने जो भी किया, हम जीत रहे थे। अब उधर से बंदा आता है, पूरे चेस बोर्ड को उठा के फेंक देता है, राइट। तो वो गलत है। खेलनी है तो चेस खेलो प्रॉपरली। किसी भी वेस्ट में यूरोपियन कंट्री ने अटैक नहीं किया था यूक्रेन में अपनी इन्फ्लुएंस लाने के लिए। हर बंदा जो है कोशिश करेगा कि उसका इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में जाए। तो मान लीजिए उन्होंने कर भी लिया, पीसफुल तरीके से कोई इन्फ्लुएंस कर लिया। अगर रशिया को करना चाहिए था तो रशिया को भी अपनी पॉलिटिकल पावर से, अपनी सॉफ्ट पावर से रिपेल करना चाहिए था। साथ में यूक्रेन है, उनको अपनी पावर से करना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, वापस हमारे लोग आएंगे, हमारा ये होगा, कोलैबोरेट करेगा, हम तुमसे ज्यादा ट्रेड कर लेते हैं, ट्रेड इंक्रीज कर देते हैं, तुम उसको निकाल दो, हमारी फोर्सेज ले लो। तो जो भी है, आप डिप्लोमेटिकली प्यार मोहब्बत से, जैसे दूसरे लोग प्यार मोहब्बत से अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर रहे थे, आपको किसी ने रोका नहीं था, आप भी अपना इन्फ्लुएंस करते थे इंक्रीज। मगर सडनली ये बोलना कि मैं अटैक करूंगा क्योंकि यूक्रेन के लोग नेटो की तरफ जाने जाते हैं, तो वो गलत है। अरे भैया, जिस तरीके से उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है यूक्रेन को नेटो की तरफ जाने के, आप भी इन्फ्लुएंस कर सकते थे नेटो की तरफ नहीं जाने के लिए। मगर उन लोगों ने यही तो करा श्रीलंका के साथ, वॉर तो नहीं की।
कोई वॉर तो नहीं कर रहा, तो वॉर करने से डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और यूक्रेन के लोग क्या बोल रहे हैं ये देख लो, क्योंकि हर बंदा अपने एंगल से देखेगा। जो भी रशियन ब्लॉक वाले हैं, रशियन के साथ लाउंड है, वो बोलेंगे हमने ठीक किया, दूसरे बोलेंगे हमने ठीक किया। आस्क द यूक्रेनियन पीपल, यूक्रेनियन पीपल क्या बोल रहे हैं। अगर लोग कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें नहीं अटैक करना चाहिए था, तो वही सत्य है। चाहे हम लोग कुछ भी कह लें, इधर के लोग कुछ भी कह लें, उधर के लोग कुछ भी कह लें, सत्य है यूक्रेन के लोगों के पास। और मुझे पता चला है, जो कमेंट सेक्शन में इतना आप बोल रहे थे क्यूबा में ये हुआ वो हुआ, ये वीडियो देख के आए थे। मैंने बोला भाई सब क्यूबा क्यों कर रहे हैं। ये जब टॉपिक ए की बात कर रहे हैं तो ए में ही सीमित रहिए, जब बी की बात होगी तब बी पे जाइए। ये नहीं कि ए की बात हो रहा है तुमने बी में किया, तुमने सी में किया, डी में किया। हम ए की बात कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए बात होनी चाहिए। वो कमजोर इंसान होता है जो बोलता है अच्छा ए तो छोड़ो, तुमने बी किया था, सी किया था, डी किया था। नॉर्मल जो तो फाइट होती है तो क्या होती है, जो मुद्दा है उसे फाइट छोड़ के आप दूसरी चीजें ले आते हैं। अच्छा तूने मुझे 25 साल पहले ये किया था, 36 साल पहले ये किया था, ये किया था। अरे भैया अभी जो बात आ रही है इसकी बात करो, इधर उधर मत भागो। जो हो गया हो गया। अगर बात करनी है हर टॉपिक की अलग से बात करो। तो यहां पे एक पॉइंट आ रही है कि क्या रशिया का अटैक, मिलिट्री अटैक ऑन यूक्रेन ठीक है कि नहीं है। पॉइंट ये है, यूक्रेन के लोगों से पूछिए, क्योंकि हम लोग तो यहां बैठे, हमें तो फर्क नहीं पड़ रहा। इंडिया में लोग बैठे उनको फर्क पड़ रहा है, किसी को बैठे फर्क नहीं पड़ रहा। किसको फर्क पड़ रहा है? यूक्रेन के इंसान को, जिसके ऊपर बॉम्ब फट रहे हैं, जिसके जहां पे लोग मर रहे हैं, जिनको बच्चे और बूढ़ों को फटाफट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जो घर में लेके राइफल लेके बैठे हैं, उनको फर्क पड़ रहा है। और किसी को नहीं, और तो सब बैठे हैं ऐसे देखने के लिए। मेन है यूक्रेन के लोगों से पूछिए, और यूक्रेन के लोग अभी यही कह रहे हैं कि उन पर अटैक नहीं होना चाहिए और वो पूरी जान लगा के लड़ेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। आई होप कि कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन हो जाए। और आज मैंने जो न्यूज पढ़ी थी ब्रीफली, उसमें ये लिखा था कि अब यूक्रेन और यूएस रशिया की टॉक्स होने वाली हैं, क्योंकि उनको पता लगा है कि यूक्रेन पूरा रेडी, मतलब काफी हद तक फाइट कर रहा है। ऑफ कोर्स रशिया इतनी बड़ी कंट्री, यूक्रेन छोटी सी कंट्री है, तो हारना तो बनता है, मगर फाइट वो अपने पूरी कर रहे हैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। तो देखेंगे क्या होता है। मगर अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।